A very good morning to all my dear students. Today we are just going to do our another poem, that is Aunt Jennifer's Tiger, which has just written by Andrew Rich. Andrew Rich is a female author, and in this poem she has just portrayed the real condition of the women in the society. So here Aunt Jennifer refers not only, you can say, it also address this very particular thing addresses the whole the condition of the women in our society. And here and Jennifer's Tiger, this indicating somehow wishes of those particular women who are just suffering under the society, and they're just facing the humiliation of their husbands and in their married life. So we will talk about this very significance of the title, how this title can be so appropriate, which is just given by Andrew Rich. So this was a very famous poem which has written by Andrew Rich. Andrew Rich, let's talk about this very prolific personality first, that is about the poet Andrew Rich, who just got born in 1929. She was born in Baltimore, Maryland, and USA. It means she was an American citizen, and she was just belonged to America. She got died recently, 8 years before from now. That is 2012. That means she was got born in 1929, but she got died in 2012. She was a journalist, feminist, as well as she is a author and poet. So here she is widely known for his involvement in contemporary women movement as a poet and theorist. It means she was also a theorist who always used to write down the theories of different perspective over the social, you can say, milieu and social concepts. So she is widely known for the involvement in the contemporary means the time period which you are belong to. So to which time Andrew Rich was belong to, it was the 20th century and 21st centuries, first 12 year. So she only used to involve herself in the women's movement. That means there were so many expeditions were there, where she used to go, and she always used to motivate the women to make a kind of stay in the society, and they have to take the stand on. So she is a kind of feminist even. And if I'll talk about the feminism, then feminism is a concept in which the particular people or group of people used to, you can say, support feminine, right? So feminine belongs to female, and female means women, and they just somehow describe the conditions of the women. They just support them, and they are just giving the some way to recover all these things. So here she is also a feminine. She always support the women in the society. So she has published 19 volumes of the poetry, three collections of essays, and other writings. It means she was also an essayist. We have just come to know here, because there were three collections of essays which she has just written down, and there's lot of writings. I have just already been told that she was a writer, author, poet, and theorist, and as well as essayist and feminist and journalist. It means she got so many talent in her own. Now strong resistance to racism, militarism, uh, echoes, and through her work, it means she usually try to resist, I mean try to stop all this racism, all this discrimination, and all this kind of humiliation which has occurred towards the feminine personality especially. So she usually write upon all those matters in which she can resist to racism and all this domination. So the poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life of a woman experiences. So in this very poem, our Andrew Rich is going to address the constraint, means the ups and downs of a married life of a woman experience. It means those kind of strings on which the woman has been enclosed. These are known as the constraints of married life. So generally we found that in our not even the society of USA, but in our Indian society, our women usually found themselves encased in a home, and they were just
allow only to do those work who were just giving some kind of pleasure and pleasant to their in-laws and all things. So if married life and a woman usually experience all these constraints. So I hope the main idea has been considered here. So now let us take a reading of this very poem, but we have to confirm few of the questions which is raised by our poet first. Now let's have a look over this before you read. What does the title of the poem suggest to you? It means I have just already been told that what are the significance of this very title, that is Aunt Jennifer's Tiger. Here we will find a character whose name is Aunt Jennifer. Sorry, aunt is a, you can say, relative pronoun, so we will say Jennifer. So Aunt Jennifer is a lady, and how the tigers were there. So are you reminded of other poem on tigers? Have you ever think what kind of poetry in which you will find out the tigers? Generally we find that in any of the poetry we will find that if there is involvement of tigers, then it reflects a kind of strength and strongness, and as well as energy, and they were just giving a kind of repetitive forces, and they were just presence over there. So we can contrast the and Jennifer's situation to the tigers. So if we will make a clear contrast here between these two. So here now let's get started with the first of the stanza. Here she says, Aunt Jennifer's tigers, friends across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. So now let's talk about first of the thing, that is rhyme scheme. Here the rhyme scheme refers to the A and B because in the last of this line of the first two, that is screen and green, they are just rhyming with the in and in. And here we are in the third and fourth, that is tree and certainty. It means E and E sound occurring twicely here in the end of these two constant lines. So we have to come to know that there are some kind of rhyme scheme, that is A and B. So let's come to know that how the Aunt Jennifer's tiger prints across the screen. It means Aunt Jennifer जो है वो एक स्क्रीन पे यानी कि एक एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं किसी वुलन क्लॉथ पे या फिर किसी कॉटन क्लॉथ पे, वट आर विद दैट, इट हैज़ नॉट बीन मेंशन हियर. यहाँ स्क्रीन का मतलब है वो यू कैन से वो पर्दा या फिर वो चीज़ आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे वॉल हैंगिंग्स भी लगा सकते हैं जिस पे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होंगी, या फिर आप सिंपली एक ऐसा कवर लगा सकते हैं. टेबल कवर हो सकता है, पिलो कवर हो सकता है. सो इन हाउ जब भी हम उस फ्रेम के अंदर यानी जिसमें हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हमें एक इन सर्कल यानी गोल तरीके का एक फ्रेम चाहिए होता है जिसके अंदर हमें कपड़ा फिट करना होता है. देन वी कैन एम्ब्रॉयड अवर यू कैन से एम्ब्रॉयडरीज. सो वैसे ही ऑन्ट जेनिफर जो है एक फ्रेम के अंदर कपड़ा लगा के एक एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं जिस पे टाइगर्स वो ड्रॉ कर रही हैं. उनके जो टाइगर्स हैं वो प्रेंस कर रहे हैं अक्रॉस द स्क्रीन. अब जो जिस भी यू कैन से प्लेन कपड़ा था उस पर जो टाइगर्स बने हुए थे प्रेंस कर रहे थे. प्रेंस मीन्स क्या होता है? जनरली प्रेंस मीन्स होता है उछल कूद करना. काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से आप मस्ती करते हुए नज़र आते हो, देन इट विल बी लाइक प्रेंस. Then bright topaz denizens of the world of green. Here bright topaz बोला गया है टाइगर को और उनके कलर को, बिकॉज उनका कलर होता है येलो. और टोपाज एक ऐसा यू कैन से एक जेम है, एक तरीके का ज्वारात है जिसका कलर भी कैसा होता है, एक ब्राइट येलो. डेनिजन्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे रहते हों, दैट मीन्स सिटीजन्स, ए काइंड ऑफ सिटीजन्स हु यूज टू लिव एट वन प्लेस. सो यहाँ जो डेनिजन्स हैं वो कौन है? टाइगर्स हैं ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ग्रीन का मतलब यहाँ क्या है? फॉरेस्ट. नाउ यहाँ बात होती है उन टाइगर्स की जो ड्रॉ किए जा रहे हैं एम्ब्रॉयडरी के द्वारा, किसके हाथों से? ऑन्ट जेनिफर के. इट मीन्स ऑन्ट जेनिफर क्या जानती है? एम्ब्रॉयडरी जानती है, और वो टाइगर्स को ड्रॉ कर रही है और उसी में वो एक
फॉरेस्ट भी ड्रॉ कर रही है जहाँ जो हमारे टाइगर्स हैं वो उछल-कूद कर रहे हैं, प्रेंस कर रहे हैं। They do not fear the man beneath the tree. उनको कोई डर नहीं है कि कौन जहाँ एम्ब्रॉयडरी में एक ट्री भी बनाया गया है कि उसके नीचे कौन बैठा है, यानी कि उनको किसी भी इंसान से कोई डर नहीं है। They pace in sleek chivalry certainty. अब उनको क्या है, उनको सिर्फ वो हमेशा पूरी तरह एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। शिवलरिक का मतलब क्या होता है? शिवलरी का मतलब होता है वो वीरता। सर्टेनिटी मतलब होता है इट मीन्स दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। सो यहाँ जनरली इफ आई विल टॉक अबाउट देन स्लीक हियर द एलिगेंट। यहाँ हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो आंट जेनिफर के ड्राइंग है, यानी जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है उसमें जो टाइगर है वो किस तरीके के हैं, काफ़ी शिवलरिक हैं और सर्टेनिटी है, एनर्जेटिक है और स्लीक है, एलिगेंट है। So now we will come to the second stanza. Here Aunt Jennifer's finger fluttering. Now Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the every needle hard to pull. Now fluttering means क्या होता है? To flutter. It means फड़फड़ाना। उसके you can say कांपना एक किस्म से। यहाँ फड़फड़ाना नहीं कह सकते हम, यहाँ पे कांपना कहेंगे। सो यहाँ पे आंट जेनिफर की जो उंगलियाँ हैं वो कांप रही हैं। थ्रो हर वूल, इट मीन जिस भी वूल से, ऊन से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उसको उस कपड़े के आर पार ले जाने के यू कैन से वो ले जा नहीं पा रही हैं। उनकी जो उंगलियों में है वो कंपन है क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ से बर्डनड है। नाउ फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब वो कपड़े के अंदर से जो आइवरी नीडल, आइवरी होती है हाथी के दांत से बनी हुई सुई, तो वो उससे एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है, लेकिन उसके हाथ इतने ज़्यादा यू कैन से फ्लटर कर रहे हैं, कांप रहे हैं कि वो आसानी से अपनी की हुई एम्ब्रॉयडरी को ही अच्छे से कर नहीं पा रही है और जो आइवरी नीडल है वो अपने कपड़े में से आर पार नहीं कर पा रही है। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन Aunt जेनिफर्स हैंड। अब जनरली क्या होता है, इंडियन सोसाइटी में हमें चूड़ियाँ पहना दी जाती हैं, वैसे ही यूएसए में बैंड्स होते हैं। तो जब मैरिज होती है आपकी तो दे जस्ट रिसीविंग यू सम रिंग और द बैंड्स दैट यू आर एंगेज्ड, राइट। सो वो साइंस होते हैं, तो उन्हीं साइंस में से एक है वेडिंग बैंड जो आंट जेनिफर को उनके पति ने दिया है। तो उसका एक मासिव वेट है, मासिव मतलब होता है हैवी वेट। तो आंट की जो अंकल की वेडिंग है बैंड है, उससे उसके हाथ जो है वो काफ़ी भारी हो गए हैं। देखिए वैसे तो कोई भी रिंग या बैंड जो हमें हाथ में पहनते हैं वो इतना भारी नहीं होता कि हमारे हाथ ही कांपने लगे या फिर हाथ उठे ही ना, राइट। बट यहाँ किस चीज़ का मासिव वेट है, यहाँ सिर्फ वो वेडिंग बैंड जो है वो मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है हमारी शादी के बोझ के लिए, जो हमें शादी के बाद जो भी चीज़ें कंस्ट्रेंट्स मिलते हैं उनके लिए। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो बहुत हैवी प्रतीत हो रहा है, काफ़ी भारी प्रतीत हो रहा है आंट जेनिफर के हाथों में। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को फ्री फील नहीं कर रही है, वो अपने आप को सिर्फ बाउंड फील कर रही है कि वो किसी की पत्नी है, डिपेंडेंट फील कर रही है, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा डर है। वो शादी की इन्हीं चीज़ों में दबी हुई है, सारी रीति रिवाज से लेकर उनकी ताम झाम शिकायतें, सारी चीज़ों से वो दबी हुई है। हम यहाँ कह सकते हैं कि आंट जेनिफर एक ऐसी मैरिड लाइफ जी रही है जिसमें वो चैन की सांस नहीं ले सकती, फ्रीडम से नहीं जी सकती, एलिगेंट नहीं लग सकती। शी हैज़ टू डू वट एवर हर हस्बैंड वॉन्ट, राइट। सो कई बार हो जाता है कि वी नीड टू ब्रेक ऑल दिस काइंड ऑफ बैंड्स, आफ्टर दैट वी विल गेन आवर हैप्पीनेस। बट यहाँ क्या है, आंट जेनिफर उन बैंड्स को नहीं तोड़ सकती, शायद या तो सोसाइटी की वजह से, क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी अगर कोई लड़की अपने घर जाकर बैठ जाती है तो क्या कहेगी सोसाइटी, कहेगी कि मे बी इसमें कोई दिक्कत थी या कमी थी, वाट, राइट। सो यहाँ पर आंट जेनिफर जो है वो सोसाइटी कम उनके इन लॉज एंड नॉट इन लॉज इफ आई से द वेडिंग का जो बोझ है वो झेल रही है। जितने भी काम है वो उसकी ज़िंदगी भर के वो काम करके थक चुकी है, लेकिन फिर भी वो काम कर ही रही है। किन के लिए, सिर्फ अपनी शादी के लिए, कि वो शादीशुदा हैं तो उनको सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नाउ here the last stanza says when aunt is died, जब aunt जो वो मर जाएंगी, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and afraid.
जब आंटी मर भी जाएंगी तब भी उनके जो हैंड है यानी हाथ हैं वो ऐसे ही टेरिफाइड रहेंगे, डरे हुए रहेंगे। स्टिल रिंग द ऑडियल, ऑडियल होती है वो कंस्ट्रेंट्स, वो चीज़ें जिनकी यू कैन से वो सारी चीज़ें जिनके अंदर वो दबी हुई है, जो जिसके ऊपर वो जो उसके ऊपर मास्टर कर रही हैं यानी कि उसके ऊपर राज कर रही हैं, वो सारी आपदाएं, वो विपदाएं, वो मुसीबतें, हम ऑर्डियल इन्हें कह सकते हैं, तो उनसे वो घिरी रहेंगी चाहे वो मर भी जाएंगी। क्योंकि मृत्यु के बाद भी एक लेडी जो है वो हमेशा यही कहलाती है कि वो उसकी पत्नी थी, उसका अपना कोई वजूद नहीं होता है। और जिस टाइम पे ये पोएम लिखी गई थी उस टाइम पे लड़कियों की सिचुएशन जो थी वो बहुत ही यूरोकन से, अच्छा यूएस ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी काफ़ी पैथेटिक थी। सो एंड जेनिफर भी सभी के लिए एक रोल मॉडल का काम कर रही हैं कि वो सभी की पैथेटिक जो सिचुएशन है वो दिखा रही हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, अब वो जिस पैनल पे यानी जिस कवर पे उन्होंने वो टाइगर ड्रॉ किए हैं, एम्ब्रॉयड किए हैं, वो हमेशा के लिए उनके मरने के बाद क्या हो जाएंगे, वो ऐसे ही प्रेंस करेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, प्राउड रहेंगे, गर्वित रहेंगे और अनअफ्रेड, बिना किसी से डरे हुए रहेंगे। नाउ ये हमें समझाता है लास्ट पैराग्राफ में कि किस तरीके से एक वीमेन अपनी सोसाइटी के डर से, पति के डर से, वेडिंग होने के डर से, बच्चों के डर से अपनी ज़िंदगी की हर खुशी को तबाह कर देती है, उसको सेक्रीफाइस कर देती है, बट वो कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को किसी न किसी ज़रिए से निकाल सकती है। जैसे आंट जेनिफर में एक टैलेंट है कि वो एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं, मे बी ये एम्ब्रॉयडरी करना उसके पति को पसंद ना हो, तभी वो थोड़ा डर डर के उस चीज़ को कर रही हो, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इमेजिन कर सकते हैं, बट यहाँ कंक्लूजन एक ही निकलता है दैट हाउ दिस वेरी वुमेन दैट इज़ आंट जेनिफर इज़ गोइंग टू कैसे सप्रेशन ए काइंड ऑफ, सो यहाँ सप्रेशन हो रहा है, उनका ह्यूमिलेट हो रही है वो। सो यहाँ कहते हैं अगर वो मर भी जाएंगी तो उनके बनाए हुए जो टाइगर्स हैं, जिनके द्वारा वो ये दिखाना चाहती हैं कि मैं भी इनकी तरह आज़ाद, प्राउड या फिर एलिगेंट, स्लीक दिखना चाहती हूँ और बनना चाहती हूँ, ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ बिना किसी से डरे, तो वो मरते दम तक उनका पूरा नहीं होगा। लेकिन उनकी जो ये इमेजिनेशन है ये इस यू कैन से वुलन कपड़े पे जो भी वो अपने वूल से एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उसके द्वारा वो देखी जा सकती हैं कि वो कितना चाहती हैं कि जो टाइगर है वो भी उसी की तरह, यू कैन से वो भी टाइगर्स की तरह बिल्कुल एलिगेंट रहे, प्राउड रहे, अनअफ्रेड रहे। सो all in all we have just three you can say stanza here. In three stanza Andrine Rich just give us the full concept how the women in our society are you can say are usually humiliated and as well as they were just facing some kind of suppression of the male dominant society. सो हमें इन 3 पैराग्राफ्स में यही पता चलता है कि हम एक पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, पर यहाँ पे पुरुषों की ज़्यादा चलती है, उनके तरीके, उनके सहूलियत के हिसाब से लड़कियों को चेंज होना पड़ता है। लड़के जो होते हैं दे विल नेवर एवर चेंज बिकॉज दे आर द लीडर्स ऑफ दिस डोमिनेटेड सोसाइटी दैट इज़ मेल डोमिनेटेड। सो आंट जेनिफर भी उनमें से एक ही है जो इन सब का शिकार है, प्रे है, जो अपनी इच्छा सिर्फ एक स्क्रीन पर पूरी कर सकती है उन टाइगर्स के द्वारा। यहाँ पर जो टाइगर्स है वो किसका सिंबल है, वो सिंबल है आंट जेनिफर की विशेस का, जो बिल्कुल अपने आप को एक स्लीक दिखाना मतलब सोचना चाहती है, शिवेलरिक देखना चाहती है, अनअफ्रेड देखना चाहती है, वो भी अपनी लाइफ को फ्रीडम से जीना चाहती है। सो हम ऑल इन ऑल अगर हम बात करें इसमें तो एक ऐसी औरत जिसको घर से बाहर के लिए कभी नहीं भेजा जाता, बल्कि उसको ये कहा जाता तुम्हें घर संभाला जाए, तुम घर ही संभालो, देन इट विल ऑलवेज बी लाइक ए बर्डन फॉर ए वुमेन, राइट। सो बट अगर कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख जाता है देन they have some kind of mindset that they can raise their voice against this very humiliation, but this is the male dominated society overall, right? So we cannot even think about to go outside and to fulfill our dreams, especially in the era when the poem has been written down. So this very poem is very you can say fantastically elaborates the situation of our women in our society as well as the condition of male dominated society and in which the girls used to live and how their conditions are to be prevailed here.
And Aunt Jennifer is a symbol for all the women in the society and in the world who are just suffering with the wedding constraints, and they were just you can say living under the suppression of their wedding bands, which were just you can say give to them by their, you can say, husband. Here Aunt Jennifer's uncle may be some kind of dominating nature, may be rude. From this very condition, we come to know that Aunt Jennifer's condition is not so well, and she has a lack of love, care, support. It means she has nothing to do with any kind of three words, that is freedom, care, and love. Nothing. So we generally found one more thing, and one concept is that she cannot even take a stand of her own, because she has just feeling herself as uh, a bird in a cage, who else can flew away one day after his or her death. So here in the last stanza we find that how the Aunt Jennifer is going to be dead, राइट व्हेन शी विल डाइट, तो उसके हाथ तब भी वैसे ही टेरिफाई करते रहेंगे, क्योंकि उसके हाथों में अभी वो बैंड है जो किसका है, उनके हस्बैंड का है, और वो हमेशा उन पर एक डोमिनेटिंग नेचर को दिखाता रहेगा. So this is all about the poem. Now let us talk about the literary devices here. We have already been discussed about the rhyming scheme, that is A A B B C C D D E E F F. So we have generally been of the 12 line here with the 3 stanza. So here we can say the 3 quadrants. Quadrants are the 4 line stanzas with the same rhyming scheme. So let us talk about the literary devices first. Here in the second of the line, here bright topaz denizens, these are the मेटाफर. इट मीन्स हम किसी टाइगर्स को, यानी किसी ऐसे जीव को, ऐसे लिविंग थिंग को, ऐसे जो घूम सकता है या फिर वट एवर बी दैट, हम किसी चीज़ को बिना लाइक और एल्स के कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से. यहाँ 2 चीज़ें कंपेयर हो रही हैं. टाइगर किससे कंपेयर हो रहे हैं? ब्राइट टोपाज से. टोपाज क्या है? एक जेम है, एक हीरा टाइप एक जेम है, राइट. सो यहाँ पर यूज़ हो रहा है मेटाफोर. नाउ नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ लाइन में दे एंड दे 2 बार रिपीट हो रहा है इन द कंसेक्यूटिव लाइन, द फ्रंट ऑफ द कंसेक्यूटिव लाइन. तो यहाँ पर एनाफोरा इज़ यूज्ड बिकॉज जहाँ पर भी हमें 2 ऐसे वर्ड जो बिल्कुल सेम हैं और इन द स्टार्टिंग वो लाइन कंसेक्यूटिव लाइन की स्टार्टिंग से हैं, तो वहाँ पर हम एनाफोरा देख सकते हैं, राइट. तो जो नेक्स्ट है वो है अंकल्स वेडिंग बैंड. वो किसका सिंबल है? वो है सबमिसिव, कैसे सप्रेशन का, सबमिसिवनेस का, और ह्यूमिलेशन ऑफ यू कैन से फीमेल. इवन आंट जेनिफर खुद में क्या है? एक सिंबल है, यू कैन से सॉरी रिप्रेजेंटेशन है वो पूरी वुमेन्स सोसाइटी का. और जो टाइगर है वो सिंबल है किसका? विशेस ऑफ आंट जेनिफर्स. एंड जो यूजुअली होती क्या है? chivalric and to be prancing and she wants to be proud and unafraid of anyone. So ये हर चीज़ें हैं. Now यहाँ जनरली you will find out that is alliteration in the fingers fluttering. यहाँ F and F जो है वो consonant sound है, वो 2 बार रिपीट हुआ है in one consecutive line. So यहाँ पे finger and fluttering. तो यहाँ f sound is repeating twicely. So you can say here that is, what you can say here, that is alliteration, right. So now this is and in the last paragraph we come to know that prancing and proud, these two also containing under the alliteration, because P and P sound are the consonant, they are just repeating down after more than one time. So all these have been done here. We have done literary devices, rhyming scheme, and all these things, and we come to know the main ideas of this very poem. And we have just already been discussed about the poet as well. So now let us talk about some of the questions which can be come out, or you can say which will come in your paper examination of 12th class. So here the first question refers to how do denizens and chivalric as to our understanding of the tiger's attitude. हम टाइगर के एटीट्यूड को डेनिजन्स यानी जो एक राज्य मतलब अपने ही जगह का एक राजा होता है, जो एक जगह का सिटीजन होता है जो वही रहता है, और शिवैलरिक मतलब वीर होता है. जनरली शिवैलरिक जो यूज़ होता है वीर लोगों के लिए जो जनरली फोर्ट करते हैं, यानी कि लड़ते हैं अपने देश के लिए या फिर किसी युद्ध में.
लेकिन यहाँ शिवलरिक हम टाइगर्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो भी वैसे ही होते हैं, अपने देश का एक अपने जंगलों में जैसे वो रहते हैं वो काफ़ी वीरता से ही रहते हैं। सो वन ऑफ द पावरफुल एनिमल ओवर द प्लानट अर्थ। सो हम ये कह सकते हैं कि डेनिजन्स जो हैं वो शिवलरिक हैं, एक दूसरे को बिल्कुल मैच कर रहे हैं। क्या हम इस चीज़ से टाइगर के एटीट्यूड का पता लगा सकते हैं? कैसे लगा सकते हैं कि हम टाइगर के संदर्भ में डेनिजन्स और शिवलरिक यूज़ ही कैसे कर सकते हैं? सो आपको जो बताना है कि टाइगर जो डेनिजन्स कैसे हैं और शिवलरिक कैसे हैं। नाउ why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wools in the second stanza? Why is she finding the needle so hard to pull? अब आपको क्या लगता है आंट जेनिफर के जो हाथ वो क्यों कांप रहे थे और क्यों वो वूल में से क्रॉस भी नहीं हो पा रहे थे? क्यों उसकी नीडल जो थी वो उससे मुश्किल से ही एक कपड़े के अंदर से पुल हो पा रही थी? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है आंट जेनिफर के जो हस्बैंड है वो एक मेल डोमिनेंस को फॉलो करते हैं, और आंट जेनिफर जो है वो बिल्कुल चीज़ों से थक चुकी है, टायरसम हो चुकी है, वो सोसाइटी से थक चुकी है, वेडिंग बैंड से थक चुकी है। सो उसके जो हाथ वो काँप रहे हैं किसी न किसी फियर से कि शायद हो सकता है कि उनके पति को वो एम्ब्रॉयडरी करना ही पसंद ना हो। सो दिस देयर कैन बी सो मैनी थिंग्स, राइट? So here the third question says, what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? Now you have to give the answer of this very following question. I hope this has been clear. First question of the says, of what or of whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? वो किससे से डरती है? Aunt Jennifer डरती है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से, डरती है अपने हस्बैंड से, अपने एम्बिशन से, राइट? सो यहाँ पर बेसिकली आपको इन्हीं चीज़ों को एलैबोरेट करना है। सो फिफ्थ पॉइंट सेज, व्हाट आर द ओडियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय? वो कौन सी ऐसी ओडियल्स थी, यानी वो कौन सी स्ट्रेंस थी वो जिनसे वो घिरी हुई थी? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग्ड? रिंग्ड मतलब होता है घिरे हुए होना। सो ऐसा क्यों है कि पोएट ने वो यूज़ किया है रिंग्ड ओडियल्स, यानी कि वो सारी पेचीदाएँ और वो सारी आपदाएँ जिनसे वो घिरी हुई थी, ऐसा क्यों यूज़ किया है? वट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोएम? और पोएम में रिंग्ड का क्या मतलब है? यहाँ मतलब है जनरली कि किस तरीके से आंट जेनिफर जो है वो अपने ऑडियल से घिरी हुई है, सर्कमस्टांसेस से घिरी हुई है, दैट इज़ द नेगेटिव सर्कमस्टांसेस। सिक्स क्वेश्चन हियर सेज, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स क्रिएटेड एनिमल दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर? अब आपको क्यों लगता है आंट जेनिफर अपने ही कैरेक्टर, यानी कि जो उनका कैरेक्टर था जो काफ़ी सबमिसिव था, दबने वाला था, वीक था, कुछ नहीं बोलने वाला था, वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर से अलग एक चीज़ ड्रॉ कर रहा है, क्रिएट कर रहा है वो एनिमल जो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि टाइगर बहुत ही वो शांत नहीं होते, वो किसी की नहीं सुनते, वो अनअफ्रेड होते हैं, प्राउड होते हैं, और वो किसी के अंडर डोमिनेंट में नहीं रहते। तो उन्होंने ऐसा क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि यहाँ उनकी विश थी और वो अपने विशेस को कहाँ उतार रही हैं? एम्ब्रॉयडरी करते हुए। वट माइट द पोइट बी सजेस्टिंग थ्रू द डिफरेंस? वो इन दोनों के डिफरेंस से क्या सजेस्ट करना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है कि आंट जेनिफर के टाइगर्स जो हैं वो क्या महत्व रखते हैं? 7 इज़ दैट क्वेश्चन, इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन दिस पोम। मैंने आपको सारे सिंबल बताए हैं, यू हैव टू एलैबोरेट ऑल दिस सिंबल इन द पोम। यू कैन फाइंड आउट अदर सिंबल्स टू फ्रॉम योर ओन इमेजिनेशन व्हेन यू विल notice all the things clearly in the poem. 8th here says, do you sympathize with Aunt Jennifer's? What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? Now हमें बताइए कि लास्ट में आंट जेनिफर के साथ सिंपैथी दर्शाएंगे आप? अगर आप उसकी यानी कि उसकी कंडीशन को जानते हैं तो क्या आप सिंपैथाइज करेंगे उसके साथ? और ऐसा कौन सा एटीट्यूड यानी कि उनका कौन सा बिहेवियर जो उनका रूप है वो दिखाया जा रहा है आंट जेनिफर का इसमें स्पीकर के द्वारा? एंड स्पीकर कौन है यहाँ पे? हमारा पोएट। नाउ इन द यू कैन सी ग्रे बॉक्स वी कम टू नो दैट नोटिस द कलर सजेस्टेड इन द पोम। कलर्स कौन से हैं आप देखिए, कौन कौन से? ग्रीन कलर है, टोपाज कलर है, और देर आर सो मैनी कलर्स विच कलर्स की जो कमी किसके जीवन में कमी थी? अपने आंट जेनिफर के जीवन में कमी थी, लेकिन फिर भी वो ऐसी कलरफुल चीज़ें बना रही है, राइट? नोटिस द रिपीटेड यूज ऑफ सर्टेन साउंड इन द पोम। अब पोम में बहुत सारे ऐसे साउंड हैं, वर्ड हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। यू हैव टू कलेक्ट ऑल दिस थिंग्स एंड you have to maintain all these things in your fair notebook. I hope this has been clear to you now, and we will meet
next in the next video. So take care till, and we'll meet you soon with another topic. And if you find anything, you can say confusion in this form, so let me come to know about your problem, and you can contact me at any time. And I think this has been done here. We'll see you soon over there. Thank you so much.